आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। यस सर। ठीक है धृति, तो मैं आपके कॉलेज में आया हूँ, ठीक है। अब आप श्रेय को और हर्षित को भूल जाओ, ठीक है। ये लोग यस। आप इनको नहीं जानते, और ये लोग इस वक्त यहाँ है भी नहीं। इस वक्त जो इंटरव्यू चल रहा है, मैं एक कंपनी है XYZ, ठीक है। यस मैं सर। उस कंपनी से आया हूँ, HR हूँ, और आपका मैं इंटरव्यू लूँगा, ठीक है। सो आपको जो है बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश करनी है जैसे आप किसी इंटरव्यू में दोगे, ओके सर। ठीक है। सो धृति, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Good evening, sir. My name is Shriti Pant and I'm from Bhavali. I'm pursuing BTech from Birla Institute of Applied Sciences and specialization in electronic and communication. My hobbies are I like making sketch and writing articles, content writing. Okay. And so in which stream you are right now? Electronic and communication. Okay, you are in electronics and company. So how is it going at the moment? You are in 7th semester right now. Yes, sir. So how has been your journey, and why you selected this college only? There are so many other colleges as well. Sir, I just found this college quite near from my place. It's 7 or 8 kilometer away from Bhavali, so easy for me to travel. And So like the distance was a major factor in your selection. You didn't look at the quality of education? no, the quality of education is also good. Okay. How can you say that? What is the parameter which you evaluated while saying that? I just go through with the seniors of the college. They told me about college, the education, the placement system. Okay. And That's it. okay. And but I have heard that there is one Graphic Era also there in Bhimtal. It's also a very nice college. So why you didn't opt for that? Uh, sir, I don't know. It's okay. It's okay. So Dhriti, I just want to ask you that you are an electronics engineer. Okay. So what exactly electronics means? What is electronics? Sir, electronic is basically all about the means everything is related to electronic. Like, What is the difference between electronics and electrical? sorry, sir, I don't know. Okay. And how much you have scored till till now? What is the present percentage which you have scored till date? 75. 75. Yes. Okay. And you also mentioned about the content writing. Yes, sir. So what exactly content writing is all about? So content writing is all about writing about particular topic or whatever it is. Means creating something in your own words is But writing. And okay, so is writing poems, writing stories, are they also content writing? yes, they are also content writing. A part of a content writing. No, I just wanted to understand what is the specific purpose. Like when you say that I am a content writer, so it simply means that you're talking about a specific kind of content, right? Or is it like generic, like you write everything? What exactly content writing is? Content writing is all about telling information about particular topic or something related to it. So is it formal nature or it's informal? It can be of both. Okay. Can you give me some examples of content writing? And Like we use yeah, you can give examples about the famous authors, or you can also give examples about your own creations. example is like we can write
content for website or for like school websites or college website, or content writing, we can write article for newspaper. These are formal way of writing and writing the content, and we can write story and some poetry in formal or informal in both ways. So these are the example, like newspapers and website. We write content for website. So Okay, okay. The next question which I want to ask you is why you are interested in joining our organization. Like, I came to know that very few people had shown interest in sitting for this interview process, and you are one of them. So why you want to join our organization? I just want to increase my uh, quality, and I just want to work somewhere. I just want to work in your organization so that I can increase my skills and my knowledge. But you can do that in every organization. Uh, Why only our organization? You have because chosen the for that. environment of your organization is quite well. People And are understanding. how you know about our environment without being a part of our organization? Um, I just researched about your organization, and from that I came to know. Okay, okay, understood. Okay, the last question which I would like to ask you, because it's a technical position for which we are hiring, what is the difference between an NPN and PNP transistor? Sorry, sir, I don't know. Okay, and what is a transducer? No, sir. Okay, Dhriti, thank you. Thanks for Okay. coming. Okay. Okay, so let's close it. So Dhriti, कैसा लगा इंटरव्यू? अनम्यूट मत करो, अपने आप को अपना फीडबैक दो. How was it? ठीक था सर. Not that good. ठीक तो बिल्कुल नहीं था ये. ठीक है. मतलब लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट टाइम थोड़ा था तो it was थोड़ा okay. थोड़ा सा फील आया Yes, sir. है, मजा आया थोड़ा सा. हाँ, मतलब पता चला कि एडवर्टाइज, हमारा कितना लेवल है. मैं तो सच बता रहा हूँ, दीज वर द, मतलब ये ना सबसे बेसिक क्वेश्चन थे. ठीक है, ये मतलब ये इंटरव्यू जो मैंने तुम्हारा लिया ना, ये Yes, sir. सबसे 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 हल्का इंटरव्यू था ये. ठीक है, मतलब इससे Yes. हल्का इंटरव्यू बहुत ही, मैंने बहुत ही बेसिक बेसिक तुमसे सवाल पूछे. ठीक है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो एचआर वगैरह होते हैं, दे उनके थोड़े से लेवल जो होता है वो हाई रहता है, क्वेश्चंस भी थोड़े से कई बार जो है कॉम्प्लेक्स रहते हैं, और अगर वो सिंपल क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो उसमें भी जो डेप्थ, वो उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस इतने होते हैं कि वो खोद के निकाल लेते हैं कि जो Yes. है कैंडिडेट कितने पानी में है. तो मेरा तुम्हें फीडबैक जो है, अभी तुम्हें ना बहुत काम करने की जरूरत है. ठीक है, Yes, sir. ये मैं तो तुम्हें ईमानदारी से, अगर तुम मुझसे स्कोर मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा 10 में से 3 नंबर. ठीक है. Okay, sir. हाँ, और अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देता हूँ जो Yes, तुम्हें sir. ध्यान रखनी है. सबसे पहले तो ये कि मैंने तुमसे सबसे पहला सवाल पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Yes, ठीक sir. है, और तुमने जो उसके बाद जो ट्रेन छोड़ी है अपनी, ठीक है, सीधा तुमने राजधानी की तरफ बोलना शुरू किया और बिल्कुल बस जल्दी जल्दी बोल के खत्म. ऐसे नहीं होता है. आराम से बोलो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, आराम से बोलो, और अपने बारे में चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताओ. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे, पहले बताओ कि सर मेरा नाम धृति पंत है, मैं कहाँ से, बताया तुमने, भवाली से हूँ. ठीक है, Yes, sir. भवाली एक बहुत खूबसूरत जगह है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है. ठीक है, सर मेरी फैमिली में देखो, तुम उसके बाद तुम पहले तो तुम पैदा हुई. ठीक है, फिर किसके घर पैदा हुई. ठीक है, तुम अपने बताओ कि मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, और अगर तुम्हारे भाई बहन है उनका बताओ, बताओ कि पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है, और भाई ये करता है, अगर जो भी तुम्हारे सिबलिंग्स हैं. ठीक है,
उसके बाद Yes, आओ, sir. उसके बाद आओ कि तुम अब क्या कर रही हो। ठीक है सर, मैं अभी बीटेक में हूँ और मैं Okay, जो sir. है मैं इस ब्रांच में हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए हैं अब तक। रिलैक्स होके बताना है। उसके बाद पास्ट में जाओ कि सर इससे पहले मैंने जो 12th की थी उसमें मेरे इतने मार्क्स थे। अगर 12th में मार्क्स तुम्हारे अच्छे थे, आई गेस कितने थे तुम्हारे 12th में? Sir, 73%. और 10th में कितने थे? 10th में 8.4 CGPA. हाँ, तो अगर बताना चाहो बता दो कि सर मैंने सर बीटेक के बता दिया, उसके बाद सर मैंने स्कूलिंग जो है यहाँ से की है और मेरे 12th में इतने मार्क्स थे, 10th में इतने मार्क्स थे। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके बताना है। उसके बाद बताओ कि तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या है, कि सर मेरे ये अचीवमेंट्स हैं। भले ही तुम्हारे 2 अचीवमेंट हो, 1 अचीवमेंट हो, वो अपना बताओ। और अचीवमेंट्स के बाद अपना नेक्स्ट लेवल की सर मेरी हॉबीज ये हैं। ठीक है, इस तरीके से। Okay, sir. तो हाँ, एक कहते हैं ना नदी की तरह। अब मैंने तुम लोगों ने ना क्या करा, तुम लोगों ने मेरी, पता नहीं तुम लोगों ने वीडियो देखी या नहीं देखी, रेज्यूमे वाली अगर तुम वीडियो देखोगे उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज अ रेज्यूमे। तो उसमें मैंने क्लियरली यही लिखा है कि रेज्यूमे इज नथिंग बट योर लाइफ इन डिस्क्राइब्ड इन 1 और 2 पेजेस। तो आपको अपनी जर्नी जो आपने रेज्यूमे में लिखा है ना, अपनी जर्नी, आपको वही जर्नी एक शॉर्ट में बतानी है। यही सवाल होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, Yes. तो वहां पे आप गड़बड़ हुई। दूसरा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल पूछे मैंने। ठीक है, Yes. आप लोग क्या हो गया ना, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि यार हम लोगों को जाना आईटी में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज आ नहीं रही हैं, तो हम लोग आईटी में ही जाएंगे। अपना वो माइंडसेट मत रखो। ठीक है, अब भरोसा रखो, अपनी जो स्किल्स हैं उसे बढ़ाते रहो। अगर ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है, वो अगर देखेगा कि हाँ यार ये धृति जो है ये बहुत अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ये बहुत अच्छी है जिस भी फील्ड में जा, अगर मान लो तुम कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी हो गई हो, ठीक है, तो तुम्हें ऊपर वाला उस हिसाब से Yes, sir. अपॉर्चुनिटीज देगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना, बेसिक अवेयरनेस होना, ये तुमसे हर कोई एक्सपेक्ट करेगा, चाहे तुम कंप्यूटर साइंस में कितनी भी स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है, मैंने तुमसे बहुत ही छोटे Yes, छोटे sir. सवाल पूछे, एनपीएन पीएनपी, ये मतलब समझ लो ये बहुत ही, ये हम तब पूछते हैं जब हमें लगता है कि कैंडिडेट से जो है कोई खास उम्मीद नहीं है। अदरवाइज इससे भी नेक्स्ट लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे हो। तो अपने Yes. बेसिक्स पे ध्यान देने की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने टेक्निकल पे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कंटेंट राइटिंग तुमने बोला, ठीक है, कंटेंट राइटिंग तुम्हारी हॉबी है, तुम उसके लिए इतनी पैशनेट हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या है। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा Yes. कंटेंट राइटिंग होती क्या है, ठीक है, तो मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो मेरी सलाह ये है, Yes, sir. वो तुम्हारी कंटेंट राइटिंग जो है वो तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज़ है। मुझे भी पता लग गया अब इतने 1 महीने में तुमको ट्रेनिंग देते देते कि भाई इस लड़की को कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट तुमको उसको समझाना आना चाहिए। ऐसी चीज है जो तुम इतने आराम, इतने अच्छे से Yes. समझा सको कि सामने वाला कहे यार ये लड़की सच में एक्सपर्ट है कंटेंट राइटिंग में। ठीक है, और Yes. मैंने तुम्हें अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करी और मैं सक्सेसफुल भी रहा, तुम कंफ्यूज होती चली गई। ठीक है, तो सामने वाले के जो प्रेशर में नहीं आना है, रिलैक्स रहो, सबसे पहली चीज तो ये। और जो है अपने रिज्यूमे को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो। तुम्हारा रिज्यूमे तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए। बेसिक्स पे ध्यान देना है। तुम्हें अगर नहीं अच्छे से आती इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें बेसिक्स जरूर आने चाहिए। ये एनपीएन Yes. पीएनपी, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल है। जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट उनको स्ट्रॉन्ग करो, और जो तुम्हारी हॉबीज हैं उनके Yes, बारे sir. में बिल्कुल वो रहो, पैशनेट रहो, कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि क्या होती है, ये क्यों लिखा जाता है, ये क्यों किया जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स दो। मैंने यही सवाल पूछे तुमसे। ठीक है, So, तो तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा से लिया जाएगा अगर तुम चाहोगी। ठीक है, मतलब आज नहीं, अगले हफ्ते अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा से लूंगा, और अगली बार मैं लेवल और बढ़ा दूंगा। ठीक है, okay, sir.
अगली बार मैं लेवल ऐसा कर दूंगा कि मेरी तरफ से मैं कोशिश यही करूंगा कि तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, ठीक है? और तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम अच्छे से अच्छे तरीके से जवाब दे सको। तुम Yes, बिल्कुल sir. जब इन जवाब दो तो मजा आ जाए कि क्या बोली है ये लड़की, ठीक है? Yes, sir. चलो भाई श्रेय, तुम हो नेक्स्ट। हेलो श्रेय। Yes, sir. हाँ भाई, वीडियो ऑन करो। भेज दिया CV। क्या बात है, नाइस। हाँ भाई, तुम्हारा सीवी भी देखेंगे और तुम्हारा इंटरव्यू भी अच्छा लेंगे, तुम टेंशन ना लो। ओके श्रेय, सो इमेजिन करो, इमेजिन फर्स्ट थिंग जो कि मैं इन दोनों को बोला था, इमेजिन दे आर नॉट हियर, ठीक है? एंड ठीक है। दिस इज एन एक्चुअल इंटरव्यू, ठीक है? एंड आई एम फ्रॉम XYZ कंपनी, आई एम द HR हेड देयर, ठीक है? एंड आई हैव कम टू फॉर द कैंपस प्लेसमेंट इन योर कॉलेज, ठीक है श्रेय? ठीक है सर। इमेजिन कर लिया? ठीक। हाँ सो सर। सो श्रेय, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Good evening, sir. My name is Shrey Dasila. I am from Halwani. It's a place few kilometers before Nainital. I was brought up here only in Halwani, and I did my schooling from Saint Teresa Senior Secondary School, Katgodam. And now I am currently pursuing BTech from Birla Institute of Applied Sciences, Bhimtal. My father is and mother both are working. Means my father is a government servant and my mother is a teacher. I am currently in my 4th year of college from electronic. I am doing pursuing BTech from Electronics and Communication Engineering. I am currently in my 7th semester. And my as far as my hobbies include, so they are playing cricket and listening to music. Okay, so Shrey, Yes, sir. I just want to ask you that can you tell me some latest news in the field of cricket? Sir, latest news includes like recently Asia Cup was there and India lost. Means it's the final is not yet over, but India is not a part of the team, means the finals, because due to like the players were, means the players who were performing well were not in the team, means they were either injured or were not playing. So that was a reason why India is not a part of that campaign now, means it's out of the finals. And Virat Kohli also scored a century recently, uh, which we all were hoping that he will do. Can you tell me something else other than Asia Cup which is happening in cricket? Like, sir, the women's team is going playing right now against England. Means the series is going on, and means after Asia Cup now, India will be, the men's team will be playing with Australia and then with South Africa T20 series, so that they are well prepared for the T20 World Cup, which is going to, Okay, which is shortly being held. okay, understood. And as far as your performance in your college is concerned, so how you think, how you evaluate it? How is the performance? What all things you should try to improve? In my college, Yes, your college performance. You are in 7th semester right now, yes, sir. and what is the current percentage? Sir, till 6th semester, it's around 83, 84. Okay, and can you give me a basic evaluation that how is it going? What all areas are to improve? What all areas where you have done really well? Can you share some insights?
Sir, as far as my academics is concerned, so means I always get the benefit of good handwriting. So, and areas to improve includes, sir, like I have to work upon my aptitude and the questions which are asked in the technical interview, like regarding a particular language, like I'm having C language, so means I code in C language. So some areas in the coding language and aptitude part I have to improve, because these are the basics when I will enter the company, or I will give the entrance exams, like either it's of any government exam or like the rounds in a company. If I want to go to a IT company and in the IT field, so there are some rounds they take. Like first is the aptitude round, then they will take the means in that only technical things will be asked, like related to the language and data structure and algorithms. They will be asking questions related to that. So I have to work. Where you want to, like, in which sector you want to work, in electronics or in computer science? So it depends on the company. Like if an IT company comes first, So you don't have any specific choice? so means it's like 50-50 kind. Means because I am having some knowledge of electronics also, and like of the IT companies, the type of work they do also. So So the should I, what is the difference between C++ and Java? C++ in Java. So means my language is C, so I haven't. Okay, so what is the difference between C? Like, have you studied Java yet or not? No, sir. Okay, I so you know have C only and C++. you have only, I know C++ and C. so what is the difference between C and C++? Sir, in C and C++ means C is the first of all the basic language. C++ can we can say it's an advanced version of that, and in that What are the classes are advanced? included. In What are C we the don't have classes. In C++ we have classes as well as. as well as? Sir, I'm saying that in C we don't have classes, but in C++ we have classes as well. Okay, what are these classes we are referring to? What is a class? So since class is a part of C++, so I have No, no. that's what I'm asking. What is a class? So, means that it's a type of arrangement. Means we can say a group. Means in which we can put certain elements, I guess. Because since I haven't studied C++ that much, so I don't know that thing, because it's not a part of C. It's a part of C++. Means classes are C++, so I haven't studied that. Okay, you just answer me one thing. If there is a DC motor, okay, Yes. and it can work on 100 volts, but I, you know, connect it to a 200 volt supply. Yes, sir. What will happen to the DC motor? Sir, if the voltage is means you are increasing the voltage, so it might get damaged after some time. Means it will be means the energy will be produced more. More energy will be produced as compared to 100 volt supply. And what about the current? So if voltage is increased, so current will be also increased. Why? So because voltage is directly proportional to current, V equals to IR. Okay. And how a DC motor works? Sir, DC motor, sir, What is the it has, principle? What so is the it has, name of the principle? I'm not able to memorize the principle, but it has windings inside it. So the more number of windings, the more, I guess, rotation will be there. Okay. And
What about what is the material used to make a NPN or PNP transistor? Do you know the material which is used? Material. No, sir, I'm not getting it. So, have you heard about germanium? Yes, sir, germanium. And like, if I want to create a N-type semiconductor, what should I do to create an N-type semiconductor? Like, what is the thing I should add to germanium to make it N-type? So I'm not having any idea about that. And the last question which I would like to ask you is, you have studied satellite communication? Yes, sir. No, sir, satellite communication. No. It is Okay. in 8th semester, I guess. Okay. Then control system you have studied? Yes, sir. Yes. So in control system, what exactly a control system means? What is the purpose of a control system? So means control system is a kind of system means which is a process which is controlled. Means the whole process in a system which is controlled. I guess there are two types of processes. Open right? and closed. Yes. What is the difference? Sir, in open loop system we don't have any feedback. Means if you send something, so the feedback won't be getting. You won't be getting the feedback. But in closed loop, you will be getting the feedback also. That yeah, the signal is received and it has given a feedback. That after going to the receivers and it's sending something. Can you So give the- example in the real world? Can you give one example of the one system which is open loop and in real world we are using it? Open loop. Real system. So I have Any to brush up the concepts. Means the basic concept I have to brush up once more because I have studied that in the 3rd or 4th semester, so I'm not remembering exactly. Okay, Shreya, no issues. Thanks for coming here. Okay, sir. Thank you. कैसा रहा श्रेय? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगा कि 20 to 30% ठीक रहा. हाँ, इतना ही ठीक था बस. इससे ज्यादा था भी नहीं. हाँ सर. सबसे पहले चलो चलो देखो मैं तुम्हें फीडबैक देता हूँ. ठीक है, अब तुम्हें जितना बोलना था बोल लिया. मैं अब तुम्हें फीडबैक देता हूँ. ठीक है. हाँ सर. ठीक. सबसे पहला तो तुम्हारी शुरुआत अच्छी थी. तुमने शायद जो मैंने अभी धृति को समझाया, तुम उस चीज से थोड़ा सा तुमने उसको फॉलो करने की कोशिश करी, लेकिन तुम फिर बीच में बिखर गए. ठीक है. शुरुआत तुम्हारी अच्छी थी. तुमने अपना हल्द्वानी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करी. फिर अचानक से तुमने स्कूलिंग पर आ गए. फिर शायद तुम्हारे दिमाग ने तुमको बोला, ओ नहीं, स्कूलिंग से पहले तो पेरेंट्स का बताना था. ठीक है. हाँ सर. फिर उसके बाद तुम दोबारा पेरेंट्स पे आए. फिर दोबारा तो तुमने कॉलेज का बताना शुरू किया. तुम एक बार कॉलेज का बता चुके थे, फिर भी तुमने बताया. ठीक है. तो इस तरीके से जो है तुम्हारा वो थोड़ा सा ना, मतलब वो स्ट्रेट जाने के बजाय थोड़ा जलेबी सा बन गया तुम्हारा वो आंसर. ठीक है. हाँ सर. कंटेंट सारा था लेकिन जलेबी था वो. तो उसने जो अपना जो उसने जो अपनी एक वैल्यू थी ना, वो थोड़ी खो दी. उसके बाद तुम्हारी एक चीज तुम्हारे उसमें वो है कि तुम आ बीच में बहुत बोलते हो. ठीक है. इसको फिलर्स बोलते हैं. तुम जो इस वीडियो को ना मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा. ठीक है श्रेय. हाँ सर. और इस वीडियो को धृति तुम भी खास तौर से इस वीडियो को दोबारा देखना, अपने आंसर्स को दोबारा सुनना और दोबारा अपने आंसर्स को जो है देखना कि तुम कहाँ, तो तुम देखोगे श्रेय कि तुम आ बीच में बहुत बोलते हो. ठीक है. ठीक है सर. ये एक गलती थी. तीसरा, तुम्हारे कई सारे आंसर्स ऐसे थे कि मतलब उन्हें सुन के ही मैं तुम्हें नौकरी से निकाल, मतलब नौकरी छोड़ो, मैं तुम्हें इंटरव्यू से निकाल दूं. तुमने बीच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात शुरू कर दी थी. ठीक है. अब तुम इंटरव्यू में बैठे हो नौकरी के लिए और तुम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो. ठीक है. और एक दो जगह तुमने और भी कुछ बोला था कंपनीज के लिए कि शायद वो आप वो कह रहे हो कि आईटी में जाना है कि हाँ आईटी में. अरे यार तुम इंटरव्यू दे रहे हो भाई, तुम ये क्या आईटी वाईटी बता रहे हो? सर वो कंपनी के हिसाब से बोल देता मैं. अगर आईटी वाली आई नहीं यार, ये तो ये देखो, इससे तुम्हारी ये इमेज आएगी कि तुम कंफ्यूज्ड हो.
ठीक है, जब सामने वाला बैठा है ना तुम्हारे सामने, हाँ सर। ठीक है, तो तुम्हें अपने पूरे इंटरव्यू को सामने वाले के हिसाब से फोकस रखना है। ठीक है, तुम उसको ये क्यों महसूस करा रहे हो कि मैं आपकी कंपनी छोड़ने वाला हूँ महाराज, मैं जो है मुझे इसी फील्ड में जाना है और मैं आपकी कंपनी छोड़ने वाला हूँ। ये आंसर्स जो होते हैं थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं, थोड़े से इनको ट्विस्ट करके दिया जाता है, और तुमने ईमानदारी से हो सकता है कि वो बात सच बोल दी कि भाई सर मेरे मन में तो ये है, लेकिन उसको ना थोड़ा सा शेप करने की ज़रूरत है इन आंसर्स को। ठीक है, वो मैं तुम्हें तुम्हारे आंसर से शेप करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ना, हाँ सर। तुम्हारी भी वही प्रॉब्लम है, तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ नहीं है, तुम्हारा भी यही कहना है सर मेरे को तो उसमें जाना है, मेरे को तो यहाँ 1% भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और मैं तो आईटी में ही देख रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को भी तुम, अच्छा आईटी में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैंने तुमसे बेसिक पूछा कि सी प्लस प्लस जावा ये सब। अब क्या है कि जब आप आईटी में जाओगे ना, जैसे आपके जो कंप्यूटर साइंस के जो काउंटर पार्ट्स हैं, उन लोगों के साथ क्या एडवांटेज रहेगा, वो लोगों को हमेशा आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, आपको वो नॉलेज सीखनी पड़ेगी। तो मेरा जो सजेशन तुम लोगों को है, ये चीज़ मैंने भी अपने साथ की थी और अपने छोटे भाई के साथ भी ये की थी, और हम तुम्हारे कॉलेज से ही पढ़े थे। ठीक है, तो आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको स्ट्रॉन्ग करो, डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करो, और जो तुम्हारी जो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री रखो। ठीक है, इस बात से जो है वो मतलब फील, ऐसा कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरी तो कंपनियां नहीं आती, और ये सब बहुत कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अभी तुम भीमताल में हो, जब भीमताल से बाहर निकलोगे तब देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो नौकरियां हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी हैं। ठीक है, और जो एक्सपोजर होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है, और इसीलिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की हिली पड़ी है, धृति तुम्हारी और श्रेय तुम्हारी भी। अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, और तुम बीच बीच में तुमने वो भी दिए कि सर मैं ये पढ़ा नहीं है, ये जो है मुझे याद नहीं है, इंटरव्यू में आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अभी कॉलेज में ही हो। आप इंटरव्यूअर आपसे ये बोलेगा, अगर कोई स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर आ गया कि बेटा तुम अभी कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तो तुम्हें क्यों नहीं आता ये। ठीक है, वो ये एक्सक्यूजेस सुनेगा नहीं। तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हो, तो वो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज को देख के ये अंदाज़ा लगा सके कि यार इस बच्चे के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थी ब्रांच, और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से आती है, और इसे कंप्यूटर साइंस भी थोड़ी बहुत आती है। तो इट मीन्स जो इस बच्चे ने डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, तो हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो है, वो इसकी बेचारी किस्मत है कि इसको नहीं मिल रही इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी, इसलिए कंप्यूटर साइंस में आना पड़ रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट इसका जो फील्ड है, इसे अपने फील्ड में नॉलेज है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जॉब सिलेक्शन के दौरान। अभी तुम लोग ना बीच में फंसे पड़े हो, ना तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है ना तुम्हारी कंप्यूटर साइंस अच्छी है, तो एटलीस्ट जो तुम्हारी कोर है उस पर फोकस करो और उसे स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, और अभी तो मैंने बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे, अब तुमसे ओपन लूप सिस्टम का मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछ लिया कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये, और अगर तुम इन सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे तो इंटरव्यूअर तुमसे नेक्स्ट लेवल के सवाल पूछ ही नहीं पाएगा, और अगर वो नेक्स्ट लेवल का सवाल नहीं पूछ पाएगा तो तुम्हारे जो चांसेस है इंटरव्यू में सिलेक्शन के, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों, धृति और श्रेय, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान देना है, बेसिक्स पे, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और सबसे पहला काम तो तुम दोनों को ये करना है। दूसरा, अपने रिज्यूमे को ढंग से तैयार करो, उसको बिल्कुल रट लो, और इमेजिन करो अपने आप को ना इमेजिन करो कि तुम इंटरव्यू में बैठे हो, तुमसे ये सवाल पूछा गया, तो तुम इसका क्या जवाब दोगे, और उन आंसर्स को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। तो तुम्हारी परफेक्शन तभी आएगी जब तुम
लगातार प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद जब तुम रिज्यूमे में उस चीज़ को लिखोगे, रिज्यूमे को बार बार रिफाइन करोगे, उसको पढ़ोगे, तो तुम बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट बात बोलोगे, इधर उधर की बात बोलोगे ही नहीं। और अभी श्रेय, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा कि तुम्हारी एकेडमिक्स की पढ़ाई वो कैसी रही, एकेडमिक्स की, वो तुम्हारा जो आंसर था उसको देखना, भी सुनना दोबारा से, तुम्हारा आंसर बिल्कुल दुनिया से अलग था। सवाल था कि आपकी एकेडमिक्स कैसी रही, मतलब आपने जो 7 सेमेस्टर बिताए वो कैसे थे। तो तुम्हारा जो जवाब होना चाहिए था वो बताना चाहिए था कि सर मेरे ये सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे, यहाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया एकेडमिक्स में, और इन सब्जेक्ट्स में मेरे सर स्कोर थोड़ा कम रहा, और इन एरियाज़ में थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल में सर मेरा ये स्टेटस है, और मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल में और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। ठीक है, तुम अपने रिसर्च पेपर का यहाँ जिक्र कर सकते थे कि सर मैं ये रिसर्च पेपर में मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है, और इस लेवल का मेरा जो है परफॉर्मेंस रहा है, और मैं इस लेवल पर अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाना चाहूँगा। ठीक है, वो तुम एक एग्जांपल दे सकते थे। तुमने वहाँ एप्टीट्यूड, और तुम वहाँ ना नौकरी, तुम्हारे दिमाग में नौकरी घुसी पड़ी है आजकल, तो तुम नौकरी को तुम उसे नौकरी के डायरेक्शन में ले गए कि मतलब मेरा एप्टीट्यूड ख़राब है, मेरा हैंड राइटिंग वाला पॉइंट तो बहुत ही वो था, बच्चों वाला। ठीक है, कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है इसलिए मुझे मार्क्स मिल जाते हैं। श्रेय, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ये इंटरव्यू दोनों के दोनों, तुम दोनों के 4th ईयर का प्लेसमेंट है, ये जरूर देखना भी उस पर यूट्यूब पे। ठीक है, अब देखना तुम लोग क्या बोल रहे थे, समझ आई बात? हर्षित, यस सर। चलो चलो भाई, तुम आ जाओ, तुम तो 3rd ईयर में हो अभी। यस सर, थर्ड ईयर। चलो, तुम्हारा तो थोड़ा अलग टाइप का इंटरव्यू होगा। अलग टाइप का, ओके सर। So Harshit, I am an HR from XYZ company. We are a global company, world's best company in our sector. Okay, and we are in, we manufacture electronics components also, and we also provide services in embedded C and other things. Okay, you are an electronics engineer? No sir, CS, You are computer a CS? science. Okay, so we are basically Yes. a computer science company. Sorry, forget the introduction. So we are a computer science company. Okay We sir. are a software, or not computer science. We are a software company. Okay, and our big companies are our client. Okay, and we make softwares for all kinds of problems, real time challenges which we face. Okay, and we are there in the market for almost 70 years. ठीक है, सो दिस इज द बैकग्राउंड टू यू। अब इन लोगों को भूल जाओ कि श्रेय धिति यहाँ पर है। Yes sir. बिल्कुल सीरियस होके तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, ऐसे इंटरव्यू देना तुम्हें। ठीक है, सो हर्षित, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Good evening sir, my name is Harshit Joshi and I am from Almora. I tell you about Almora. Almora is very religious place. One of their Kasar Devi you have heard about. This is very world famous temple in, you can say, in world. So next I come to my family. There are 4 members in my family: my mother, my father, and my sister, my younger sister. So my father is a businessman as well as he's a government servant also, and my mother is a business facilitator in SBI and post office, and my younger sister is doing BBA. And now come to my schooling. So I have done my schooling. I have done my high school from Saraswati Vidya Mandir, and I have done my intermediate from inter college, government inter college, and my hobbies are playing badminton and clicking pictures of nature, and as well as I am a YouTuber also. And wait a minute, sir. Yeah. And my career objective are I'm looking for an opportunity to work in the field of software development, and in
in future I want to enhance my coding skills and the problem solving skills, and I want to build a leadership skill in my own. And I have done internship. I have done internship in Ashok Leland as a software developer. That's it. Okay. So Harshit, you are right now in Bhimtal. Yes, sir. I'm in Bhimtal. Our company is actually located in Chennai, Okay. and you will have to shift to Chennai. Okay, we don't have the work from home facility. So, are you okay with it? Yes, I am okay with it. If I get a package of, yeah, yes, sir, I'm okay with it. Okay. So, what is the package which you are expecting? So I'm expecting, as I am a junior software developer, so I expect a package of 7 to 8, minimum 7 to 8 lakh per annum. Okay, but Yes. currently we can only offer you 4 lakhs, but after 6 months we'll increase it. So, will it work Yes, sir, for you? I'm also okay with it because if in starting I can improve my skills and learn many things from your company, so I'm okay with it. I can adjust. But you know why, Harshit? I feel that tomorrow, when if you'll get a job opportunity in some Yes. company which is located in NCR, you will leave our organization. So, as you told me, your organization is still 17-year-old, and your organization is globally. And so I'm also looking for an organization which is well established and I can learn many things. But as you said that this is an established organization, so I don't think I have to work hard in your company. If sorry to say that if I get an opportunity to work in startup, so I will also prefer that startup because in a startup, I know in startup I will get many things to learn. But in your company, I don't think I will get that much exposure. Okay, so like To be honest, does it mean that you are not interested in joining our organization? no, sir, this is not I mean, but as you said that I will get a opportunity in another company. If I if after some time I feel that my growth is not so I can switch my company. But Harshit, we can't afford to have such employee here. We can't afford to have an employee. You know, we'll spend so much money on this thing. We have come from Chennai, and we have spent so many Yes. hours traveling, and then taking your interviews. And after that, we come to know that after 6 months you will leave. Then, you know, we can't hire such people who will, you know, not respect the efforts which we are putting in hiring you. So I haven't I said sorry. Yes, sir. okay, and Harshit, like, what is your plan for next 5 years? What you're looking for that? Okay, this is where I should be in next 5 years. What is your plan? Sir, What is there in your mind? so now I am a junior developer. After 5 years, I see me in a project manager, as a senior software developer after a 5 year in your company. Okay, Harshit, thank you very much. भाई हर्षित, ये क्या करा तूने? ये तो सर मैं थोड़ा सा हो गया था क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल जब बोला ना कि हाँ टू बी नहीं ऑनेस्ट हो गया यार, बिल्कुल। ऑनेस्ट नहीं हो गया तो बहुत ज्यादा खतरनाक ऑनेस्ट हो गया। मतलब ऐसा इंटरव्यू लाइफ में भगवान कभी ना देने को मिले।
ठीक है, ये अपनी रिकॉर्डिंग जरूर देखना तुमने क्या बोला है, ठीक है। ये सर श्रेय कैसा रहा इसका इंटरव्यू? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं मैं। धृति तुम्हें क्या लगता है? हाँ मतलब ठीक है। काफी जगह काफी चीजें गलत बोली कि मैं स्टार्टअप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ है ना? और ये इतना मुझे वो चाहिए, इतना एलपीए मिलना चाहिए, ये सब नहीं बोलना चाहिए। मतलब तुम्हें मतलब तुमने सीधा अपने आप को मान लिया, आई एम ए जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिना डेजिग्नेशन कुछ डिस्कस हुए। मतलब पैकेज की तो खुद ही बात ले आई कि मेरे को 7 लाख रुपए चाहिए, मैं तो आऊंगा चेन्नई। हद है यार। और सिर्फ तो मैं आपको, मैंने एक इंटरव्यू वीडियो देखी थी, तो मैं एक एज अ, आपने कहा ना डमी इंटरव्यू है, सो मैं एक एज अ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो आपका क्या रिएक्शन। ऐसा एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मत वो करना, ठीक है? ये तो मतलब बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, हाँ ठीक है। हाँ, ये ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये यार, मैंने तुम लोगों को कई बार बोला है, नेचुरल रहो, ठीक है? अपनी लाइफ के बारे में बोलो, जो तुम हो ना, जो तुम लोग हो वो दिखाओ। ये मत दिखाओ कि वही होता ना कि फलाने को देख लिया कि फलाने ने ये आंसर दिए थे, ठीक है, तो कॉपी मार दिए, ठीक है। जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके आंसर की, मैं तुम्हें आंसर नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा कि उसके आंसर ऐसे दिए जा सकते हैं। लेकिन जो बेसिक सवाल है तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड, तुम्हारी जॉब से रिलेटेड, ये चीजें तो किसी और के उसमें मत आओ। अपने तुम्हें मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ श्रेय और धृति, खासतौर से तुम दोनों को, कि तुम्हारे इंटरव्यूज अभी शुरू हो सकते हैं। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, और हर्षित तुम ये अगले साल के लिए तुम तो खास तौर से ध्यान रखो कि तुम तो सुसाइड करने पे ऐसा करा, तुमने इंटरव्यू, तुम्हारा इंटरव्यू सुसाइडल इंटरव्यू था तुम्हारा, ठीक है, कि मुझे लो ही मत, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे से क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए था कि हर्षित वाई शुड नॉट बी हायर यू, ठीक है। तुम्हारे साथ तो वो हुआ है आज। तो श्रेय और धृति, मैं तुम्हें एक बात है साफ बताऊंगा, जितना तुम इंटरव्यू में ओरिजिनल रहोगे, जितना तुम इंटरव्यू में जो है असली श्रेय और असली धृति को दिखाओगे कि सर मैं ये हूँ, ठीक है, और मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे ये आता है, ठीक है, उतना तुम्हारे चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भागो, कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो इंजीनियरिंग की, एक तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, वो तुम उससे भाग जाओ, वो तुम ना पढ़ो या तुम उसमें एक्सक्यूज दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाकी चीज़ें हैं कि सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है और यही सच सच है मेरे बारे में, मुझे इतना ही आता है सर, ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मेरे को कंप्यूटर साइंस में इतना ही आता है सर। आप मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चाहे वो पूछ लो। तुम अगर ये एटीट्यूड भी सामने वाले को दिखा दो ना, अगर वो तुम्हें नहीं ले रहा है तो यकीन मानो वो उसका लॉस है। क्योंकि जिस एम्प्लॉय के अंदर, जिस कैंडिडेट के अंदर सीखने की लगन होती है ना, ठीक है, जिसमें ये दिखता है कि यार इसने लाइफ में जो फैसला लिया उसको सही साबित किया, तो उस इंसान की वैल्यू ज़्यादा होती है और उस इंसान को आगे जाके सिखाना भी आसान होता है। उसको आप फिर कुछ भी सिखा सकते हो, वो सब सीख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम दोनों को ये ध्यान रखना है कि एक तो ओरिजिनल रहना है, रिलैक्स रहना है इंटरव्यू के दौरान, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, ठीक है, और बहुत ही वो करना है, मतलब चीज़ों को ना सिंपल रखना है। और श्रेय तुम्हारे केस में ना एक चीज़ मैं वो पॉइंट आउट करना भूल गया, जितना सवाल पूछा गया है सिर्फ उतना ही जवाब देना है। धृति के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है, धृति से जितना पूछो वो उतना ही बताती है, ठीक है, वो चीज़ों को ज़्यादा खींचते नहीं है। श्रेय तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान वो काम करना है। मैंने तुमसे पूछा कि लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, तुमको बताना चाहिए था सर एशिया कप में इंडिया बाहर हो गई है, ठीक है, और जो तुमने बताया कि वो वुमेन क्रिकेट टीम कहीं तुमने बताया ना किसी टूर पे जाने वाली है, इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर है, बस इतना बता के खत्म। तुमने क्या करा, तुमने उसमें रीजन भी घुसेड़ दिए कि
सर इंडियन क्रिकेट टीम इस वजह से हारी, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ध्यान रखो, जितना पूछा गया सिर्फ उतना जवाब देना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन बाई चांस लेट से जैसे मैं पूछ रहा हूँ और कोई नेटवर्क इश्यूज की वजह से कुछ सवाल तुम नहीं सुन पाए, तो वहीं पर बोलो सर apology सर, I haven't been able to hear the question properly because there is some there was some network issue. So if you could you please repeat your question sir, ठीक है? या फिर sir I beg your pardon, I'm not able to wasn't able to hear your question properly, could you please repeat it? इस तरीके से सवाल ध्यान से सुनो कि क्या पूछा गया है, ठीक है? उसको समझो और जवाब देने की जल्दी मत करो कि सवाल खत्म हो और मुझे जवाब देना है। अगर तुम सवाल सुन के 5 सेकंड का पॉज लेके सोच के फिर जवाब दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने इंटरव्यू में कई बार हुआ है, मैंने इंटरव्यूअर से बोला है, कोई ट्रिकी सवाल आया, मैंने इंटरव्यूअर को सीधे बोला, मैं कहा सर कैन यू अलाउ मी टू थिंक फॉर 2 मिनट्स? तो इंटरव्यूअर ने बोला ठीक है लो, और इंटरव्यूअर उस बात से खुश होते हैं कि चलो ये सोच के जवाब देगा, ठीक है, ये सोचने के लिए वक्त मांग रहा है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तुम्हें आ जाएंगी, ठीक है?